मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि आईसीटी की सिग्निफिकेंस ईसी के स्टूडेंट्स के लिए क्या है। पहले हमने काफ़ी बात की है इस बात पे कि आईसीटी ओवरऑल किस तरह से इम्पॉर्टेंट है इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ओवरऑल टीचर्स के लिए, लर्निंग के लिए किस तरह इम्पॉर्टेंट है। बट यहाँ पर इस मॉड्यूल में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स को इसका क्या फ़ायदा है। पहली चीज़ कि टू सर्वाइव एंड टू थ्राइव। नाउ सर्वाइवल एक ऐसी चीज़ है कि जिस तरह हम यूँ कहें कि इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर चिल्ड्रन व्हेन दे graduate, when they get out in the workforce, in their professional fields, they are able to cope with the changes that are going around and they are able to survive in that environment. So survival is the first thing. Second is to thrive, means once you have the basic skills, once you have all those things that are needed, that are provided to you through instructions, through learning experiences, अब आप ready हैं to face the professional field and you are ready to develop yourself, to advance yourself further in those areas. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि to become responsible digital citizens। अब responsible digital citizens किस तरह से बच्चे बन सकते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि we are living in a digital age, we are exposed to a lot of information। बच्चों को बहुत ज़्यादा information उनके access पे है। there are a lot of things, there are a lot of concepts that are only one click away, that are available at their fingertips. So how to handle that information, उसको किस तरह से conceive करना है, किस तरह से उसको absorb करना है, all of this is part of becoming a responsible digital citizen in the world. अब digital citizenship यहाँ पर stop नहीं होती, बल्कि इसको अगर हम फर्दर लेकर जाएं तो यहाँ ये बात भी मेंशन करना ज़रूरी होगी कि डिजिटल सिटीजनशिप में हमें इस बात का ख्याल भी रखना है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ टू सेंसिटिव टू बी withheld फ्रॉम अदर्स, दैट कैन बिकम हार्मफुल फॉर if we broadcast that information, and this is going on a lot. There are a lot of phenomena that are going on due to the mishandling of information on the web. So जिस तरह हमने पहले बात की कि साइबर बुलिंग है, प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप। देन वी नो कि बच्चे जो हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं और बच्चों की क्यूरियोसिटी का कोई मैच नहीं है। देर इज़ मोर क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन दैन इन एडल्ट्स, और ड्यू टू दिस क्यूरियोसिटी देर कैन नेवर बी अ बेटर टाइम, बिकॉज इस क्यूरियोसिटी का सोल्यूशन उनके फिंगर टिप्स पे है। वट एवर दे कैन थिंक ऑफ, वट एवर दे हैव क्वेश्चंस फॉर, दे हैव एक्सेस टू द आंसर्स। बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि दे शुड सीक ऑल द आंसर्स फ्रॉम ICTs. They should be seeking those answers under adult supervision, and this will be a healthy choice for their mental and social development. Fourthly, we know कि बच्चे imaginative होते हैं, they are very dramatic. They can think a lot of scenarios, they can dramatize things, they can role play, और वो इन चीज़ों को enjoy भी करते हैं। So ICTs में इस तरह की बहुत सारी apps हैं, बहुत सारी इस तरह के learning experience हैं जिनमें वो for example they can turn into a doctor and they can have that role and they know कि doctor एक what a doctor does in a day। इसी तरह कोई भी इस तरह की role playing है वो बहुत easily से कर सकते हैं through ICT with very realistic और near to realistic details। फिर उसके बाद individual और learning collaborative learning experiences ICT provide करती है बच्चों को, जिसकी वजह से वो relevant है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ICT को बच्चों की लर्निंग में इंटीग्रेट करने से, यानी कि फॉर द चिल्ड्रन व्हाट आर दे एबल टू गेन इन स्पेसिफिक एरियाज़। और वो स्पेसिफिक एरियाज़ कौन से हैं? सबसे पहला एरिया है लिटरेसी। लिटरेसी में आपकी जो रीडिंग, राइटिंग, आइडेंटिफाइंग लेटर्स, फोनिक्स, ऑल ऑफ दैट इज़ इंक्लूडेड। इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे कि हाउ ICT कैन contribute to literacy. Then ICT can provide opportunities for mathematical learning, science and creativity, problem solving, visual literacy or painting, graphic designing. All of these are examples of how ICT is relevant for ECE students. Then we have
लर्निंग ऑफ म्यूज़िक और लर्निंग ऑफ सर्टेन अदर स्किल्स। आपने देखा होगा कि ड्यू टू ICT लैंग्वेजेस लर्न करना भी अब इतना मुश्किल नहीं है। चिल्ड्रन कैन लर्न एज अप टू 3 to 4 लैंग्वेजेस एट अ टाइम इन इफ़ एक्सपोज प्रॉपरली टू इन देयर अर्ली चाइल्डहुड। सो ICT और लिटरेसी डेवलपमेंट किस तरह से, जिस तरह आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशन में स्टोरीज चल रही होती हैं और नीचे उसके सब टाइटल्स आ रहे हैं, उन सब टाइटल्स में जो वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है वो वाला वर्ड जो है वो हाईलाइट होता जा रहा है साथ साथ। तो दिस इज़ वन एग्जांपल कि किस तरह से बच्चे वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी तरह साइट वर्ड्स का एक कॉन्सेप्ट है। साइट वर्ड्स मींस कि जैसे आप ऑफ, एंड, वी, आर, ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं। लॉन्ग बिफोर द चिल्ड्रन लर्न देयर स्पेलिंग्स दे आइडेंटिफाई देम एज साइट वर्ड्स। इनको साइट वर्ड्स इसीलिए कहा जाता है कि देखते साथ बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वर्ड कौन सा है, रिगार्डलेस ऑफ ही और शी नोज़ द स्पेलिंग और नॉट। तो ये कुछ ग्रेजुअल चीज़ें हैं जो हम आगे के मॉड्यूल्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी इम्पैक्ट दैट ICT हैज़ ऑन लिटरेसी। देन अब हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से वोकेबलरी, प्रिंट अवेयरनेस, नैरेटिव स्किल्स, प्रिंट मोटिवेशन, लेटर नॉलेज और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो आउटलाइन की गई हैं फॉर लिटरेसी डेवलपमेंट एंड दे आर एग्रीड अपॉन बाय रिसर्चर्स। इसमें कुछ ऐड भी हो सकती हैं, कुछ रिमूव भी हो सकती हैं, बट दीज आर द बेसिक्स जिस पे बहुत ज़्यादा लोग एग्रीड अपॉन हैं। यहाँ पर हम इनको किस तरह से रेलेवेंट कर सकते हैं, किस तरह से ICT इनको एड्रेस कर रही है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की, जैसे लेटर नॉलेज की आपने देखा होगा कुछ ऐप्स हैं जो लेटर राइटिंग ऐप्स के अंदर बच्चे ट्रेस करते हैं, लेटर्स को लिखते हैं, लिखना सीखते हैं, वर्ड्स को अटर करना सीखते हैं इन ड्रामेटिक प्ले, इन रोल प्लेइंग। ऑल ऑफ दिस इज़ ICT सपोर्टेड फॉर लिटरेसी डेवलपमेंट। देन वी हैव ICT फॉर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग किस तरह से हो रही है कि एक चीज़ जो एक मिसकंसेप्शन है कि मैथ्स को हम रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते या रेलेवेंट नहीं करते। सो चिल्ड्रन आर एबल टू से कि 2 + 2 is 4, but when they are presented with a word problem or a real life problem, they have difficulty in doing that because we are not relating mathematics to real life. ICT क्या करता है कि मैथ्स को रियल लाइफ के बहुत करीब लेके आता है और आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर इन्वॉल्व करके, बच्चों को से एक्सपोज करके वो ये बात हम सिखाता है कि आपने किस तरह से इक्वेशन को अपने लाइफ में अप्लाई करना है, किस तरह से एक फार्मूला को जो कि सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ है वो आपकी रियल लाइफ में कैसे वर्कआउट हो रहा है। कुछ स्किल्स ऐसी मैथमेटिक्स की जो यूनिसेफ ने 2002 में एग्रीड अपॉन कि दीज आर द स्किल्स जो कि अप टू 4 to 5 years ऑफ चिल्ड्रन शुड नो अबाउट मैथमेटिक्स। उसमें सबसे पहली स्किल है कि बच्चों को नंबर रीडिंग आनी चाहिए। दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर्स। सेकेंडली, उनको नंबर्स को डिफ्रेंशिएट या डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए। देन थर्डली, दे शुड हैव अ स्किल ऑफ एडिशन एंड दे शुड रिकग्नाइज द पैटर्न्स। ये 4 बेसिक स्किल्स हैं जो कि अप टू 4 to 5 years के बच्चों के लिए यूनिसेफ ने ले डाउन की हैं और दे हैव टू बी अचीव्ड बाय दैट एज। देन वी सी कि साइंटिफिक इंक्वायरी में किस तरह से ICT हेल्प करती है। जैसे मैंने बताया, एक्सपेरिमेंट करने के ऐप्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऐप्स हैं, लाइफ साइंस के ऐप्स हैं, किस तरह से बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल क्या होता है, ये सारी चीज़ें दे आर ऑल रेडीली अवेलेबल फॉर अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन। और हम साइंस में अब देख सकते हैं कि किस तरह से ये कुछ स्किल्स हैं जो बच्चों में डेवलप की जा सकती हैं। बीइंग क्यूरियस, आस्किंग क्वेश्चंस, परफॉर्मिंग टेस्ट, यूजिंग सेंसेस, लुकिंग क्लोजली एट थिंग्स एंड नोटिसिंग, सिंपल रिकॉर्ड्स लेना, सिंपल ऑब्जर्वेशंस लेना, टॉकिंग अबाउट व्हाट यू हैव नोटिस्ड and sorting, matching things, finding things that are similar, different. So this is one of the things that are relevant through ICT for students. और ये सारी skills achieve easily की जा सकती हैं through interactive whiteboards, through applications, through the use of proper ICT tools and techniques.